Okay, so in English grammar, basically there are so many parts, like there are parts of speech actually जो हमारे बोलने में काम आते हैं. Parts of speech से ही आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है. ये एक पार्ट है हमारी speech का, हमारे बोलने में एक पार्ट है इसका. In a sentence, words can be considered as the smallest components that have unique meanings. We can categorize words into several types of parts of speech based on their use and functions. An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. Therefore, understanding parts of speech is essential for determining the correct meaning of the word. अब जब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिकली 8 टाइप्स होती हैं. हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, so इसमें क्या रहता है हमारे पास बेसिकली. अब आप आगे देख सकते हो कि we will study first of all noun. Its very first type, noun. So starting with the noun, as I have already told you that there are 8 parts of speech in English grammar. So सबसे important, सबसे like most important part of speech is noun. A noun is a word used to name a person, place, animal, thing and abstract ideas. So noun एक बहुत ही important topic होता है क्योंकि ये बहुत basic topic है. So ये basic topic हर किसी को आना चाहिए, right? So noun basically वो होता है एक word like noun is a word basically which is used to name a person, place, animal, thing and abstract ideas. Abstract ideas होते हैं feelings basically, right? So abstract ideas सिर्फ वो होते हैं जो feelings हैं तो उनको हम specially name नहीं कर सकते, right? So there are 5 kinds of noun. That is, a noun is a person, place, animal or thing. So person में girl, boy, mom, dad, grandma ये सब कुछ and place में school, home, playground, zoo. Animal में dog, bee, frog, cow, lizard and thing में book, flash, shoe, pencil. So ये सब कुछ तो आपको idea है इस चीज़ का. So proper noun, common noun, abstract noun, collective noun. Noun की further types होती हैं ये सारी and last is the material noun. So there are 5 types of noun. Okay. So proper noun is name of some particular person or place is called as proper noun. जब हम किसी particular person के नाम के बारे में बात करेंगे जैसे राजेश, कोलकाता, अंजलि, ताजमहल etc. ये सब proper nouns हैं. ठीक है. जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे उसमें क्या आएगा नेम्स एक्चुअली एंड व्हेन हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे सो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और ऑफ सेम काइंड as man, tiger, family, girl, etc. common nouns. अब common noun का मतलब क्या होता है कि हम girl सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लड़की को तो नहीं कहते, right? हम girl सारी लड़कियों को कहते हैं कि कोई भी girl है तो उसको हम like simply आगे girl ही कहते हैं, कोई उसका एक particular name नहीं है. So ये एक common name है जो हम सारी girls के लिए use करते हैं. अगर बॉय है तो एक कॉमन है कि जो हम सारे लड़कों के लिए यूज करते हैं एंड अगर बाय चांस हमारे पास कुछ भी है लाइक टाइगर है सो ये सारे टाइगर्स के लिए यूज होगा. सो further next type is abstract noun. An abstract noun is a noun which names anything which you cannot perceive through your physical senses. इसका मतलब क्या होता है कि abstract noun वो वाले इसमें सब वो चीज़ें आती हैं, इसमें वो noun आता है जिसमें हम कंसिडर करते हैं वो चीज़ें जो हम अपने फिजिकल सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि इनको हम लाइक टच नहीं कर सकते या फिर हम इसको खुद कोई नेम नहीं दे सकते. जैसे स्लीप, डेथ, चाइल्डहुड ये सब एक चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते. ठीक है. काइंडनेस है ये एक फील है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं काइंडनेस को. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सारी वो चीज़ें आती हैं जिनको हम खुद टच नहीं कर सकते, हम अपने फिजिकल सेंसेस के साथ उसको महसूस नहीं कर सकते. So, next is collective noun. A collective noun is a name of a group of animal or things taken together. Collective noun वो होता है जिसमें हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलरली ग्रुप लाइक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ पीपल और काइंड ऑफ हम जब बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ शीप्स तो इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है. आर्मी, फ्लॉक, क्राउड etc. Are the collective nouns? Some well-known collective nouns are given below. A team of players. So इसमें team is a collective noun used for
players. A pair of shoes. So shoes का हम पेयर, एक्चुअली शूज के साथ हम पेयर यूज करते हैं क्योंकि एक पेयर ही प्रॉपरली एक शूज का होता है जिसको हम बोलते हैं क्योंकि वो दो होते हैं, सो इसीलिए हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अ मॉब ऑफ पीपल. मॉब ऑफ पीपल मतलब झुंड. ओके. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं. दैट इज वाई सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन. लाइब्रेरी बुक्स की कलेक्टिवनेस, लाइक उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में. दैट इज वाई. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. जब शिप्स कलेक्टिवली हम उनको बोलते हैं कि अगर कलेक्टिवली शिप्स हमें गिवन होती है तो उसको हम फ्लीट बोलते हैं. अ हर्ड ऑफ कैटल. कैटल बेसिकली काऊ का बच्चा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अगर बहुत सारी कैटल्स हो तो उनको हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल. अ स्वार्म ऑफ बीस. बीस का झुंड, उसको हम स्वार्म बोलते हैं. अ शोल ऑफ फिश. फिशेस का झुंड, उसको हम शॉल बोलते हैं. So, the last one is material noun. A material noun is the name of material of which a thing is made. Material noun कौन सा होता है कि हम उस particular name of the material like silver, gold, iron, cotton, wood, कोई भी चीज़, जैसे कपड़ा कॉटन से बनता है, so उसका material is cotton. जब हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की मटेरियल की, कपड़े का मटेरियल इज कॉटन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड, जिससे वो चीज़ बनी है. सो इसके साथ एक नोट भी है, कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन नाउन्स. जो कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन है इनको हम कॉमन नाउन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत लाइक कॉमनली यूज भी किए जाते हैं एंड दे कम इन प्लेस ऑफ थिंग्स एक्चुअली. So that is why we also name it as common nouns. So don't get confused within that. So further, just giving a brief explanation. It's not like it's not again topic, but it's an example basically. So when we are talking about common nouns, a common noun is a noun that refers to the people or things in general. So इसके साथ आपकी examples रहती हैं boy, country, bridge, city, birth, day, happiness. So अब आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं. एंड प्रॉपर नाउन में एज आई टोल्ड यू, उसमें हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे स्टीवन, अफ्रीका, लंदन, मंडे. इन ब्रिटेन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. ऑब्वियसली जब हम किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, इंडिया लिख रहे हैं, तो उसमें आई हमेशा बड़ा रहता है. किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं, जैसे राम लिख रहे हैं, तो उसमें आर हमेशा कैपिटल लेटर रहता है. दैट इज वाई इट्स मेंशन लाइक दिस हेयर. बट अब एक कॉन्क्रीट नाउन भी होता है जिसको हमने पहले एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला है. लाइक एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, जस्ट इसमें डिफरेंस चेक करो. अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हर्ड और टेस्टेड. अब कॉन्क्रीट नाउन इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैं यही चीज आपको दिखाना चाहती थी. लाइक इट्स नॉट द रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक, इट्स बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं. सो ये भी एक तरह का नाउन होता है. कॉन्क्रीट नाउन भी, कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसमें हम वो नाउन उन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम खुद एग्जिस्ट, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. लाइक एक टेबल है, उसको हम टच कर सकते हैं और वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट. जिसको कोई चीज़ है, कोई कॉफ़ी है, उसको हम स्मेल कर सकते हैं, या फिर कोई बारिश का शोर है उसको हम सुन सकते हैं, राइट. सो इसमें एग्जांपल्स आ रही हैं, इंक्लूड डॉग, बिल्डिंग, कॉफ़ी, ट्रेन, लाइक ट्री, बीच, ट्यून. ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स है जो फिजिकल एग्जिस्ट करती हैं, जो नज़र आ सकती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं एंड टच कर सकते हैं. और टच, छूना एंड सुन सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली इसका अलग होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है. जिस तरह जिसमें हम स्पेशली टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं. सो नो फिजिकल रियलिटी इज देयर, इट्स बेसिकली अ फीलिंग. ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ये सब एक फीलिंग्स हैं. सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और है. यू जस्ट हैव टू सी इट, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू सी हियर इज दैट कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स. एग्जांपल ऑडियंस, फैमिली, गवर्नमेंट, टीम, जूरी. अब यहाँ पे जूरी क्यों यूज किया गया है, उसके पीछे भी एक रीजन है. लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर टीम ऑफ जजेस, तो उसको हम जूरी बोलते हैं.
ऑडियंस मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं देखने या सुनने आए हैं. सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल देयर. फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. गवर्नमेंट जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसको हम गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं उसके अंदर सारे मिनिस्टर्स कवर हो जाते हैं. टीम, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, तो उसमें सारे प्लेयर्स कवर हो जाएंगे जब हम बोलेंगे कि टीम. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, in American English, most collective noun are treated as singular with a singular verb. हम जब collective nouns को treat करते हैं, लेकिन उनके साथ हम कुछ specially verb लगाते हैं, तो उसके साथ हम singular verb लगाते हैं. Example: The whole family was at the table. सारी family table पर थी, मतलब बेसिकली वो डिनर करने गए होंगे, बेसिकली कुछ भी करने गए हो, तो the whole family was at the table. उस टाइम पे सारी फैमिली टेबल के पास थी या टेबल पर थी. In British English, the preceding sentence would be correct, but it would also be correct to treat the collective noun as a plural with a plural verb. अब अगर हम इस पे was की जगह were यूज कर लें, वो कह रहा है कि अगर हम इसमें was की जगह were यूज कर लेंगे तो आ जाएगा सेंटेंस the whole family were at the table. सारी फैमिली टेबल पर थी. So, what you can do here is, it's just a simple thing. You don't have to focus that much on this. You just have to see कि कहाँ पे चीज़ meaningful बन रही है. और यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि हम बेसिकली was यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा मीनिंगफुल है. A noun may belong to more than one category. For example, happiness is both a common noun and an abstract noun, while Mount Everest is both a concrete noun and a proper noun. कई बार हो जाता है कि कोई नाउन पर्टिकुलरली दो जगह पर भी हो सकता है अवेलेबल, जैसे हैप्पीनेस जो वो एक कॉमन नाउन भी है, इट्स अ कॉमन थिंग, हम इसको कॉमन चीज बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है क्योंकि एक फीलिंग है, और माउंट एवरेस्ट कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि दैट कैन बी फिजिकली सीन, टच्ड, एंड प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि हम प्रॉपर नाउन में थिंग्स, प्लेसेस का नाम भी रखते हैं, तो प्लेसेस में हम माउंट एवरेस्ट भी रख सकते हैं. स्किपिंग टू द फर्दर थिंग्स, सिंगुलर नंबर. It refers to the count of only one of a noun or pronoun. इसमें सिर्फ हम एक नाउन की बात करते हैं या प्रोनाउन की बात करते हैं. एग्जाम्पल पेन, टेबल, आंट, फादर, ये सब कुछ एक सिंगुलर में. प्लूरल नंबर, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. जब हम इसमें ज़्यादा की बातें करते हैं, जैसे पेन्स, टेबल्स, आंट्स, फादर्स. और हाउ टू चेंज नंबर. Numerous rules are there to change the number from a singular to plural. They are as follows. इसके साथ ही कुछ rules होते हैं जो आपको follow करने होते हैं. जब आप पेन के साथ पेन्स बना रहे हो, singular to plural change कर रहे हो, तो कुछ rules होते हैं जो आपको follow करने होते हैं. In general, S is used at the end of a singular noun to make it plural. वो बोल रहा है कि जब हमने plural word बनाना होता है, हम बेसिकली एस वर्ड यूज कर देते हैं. डेफिनेटली जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पेन को पेन्स में, तो हम एस ऐड कर रहे हैं. टेबल को टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम एस ऐड कर रहे हैं, राइट. अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ध्यान से देखो. पेंसिल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पेंसिल्स में. काउ को कन्वर्ट कर रही है काउस में. हाउस इज कन्वर्टेड इनटू हाउसेस. डॉग इज कन्वर्टेड इनटू डॉग्स. इसमें बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ हम एस ऐड कर रहे हैं. मोबाइल इज टू बी कन्वर्टेड एज अ प्लूरल इन मोबाइल्स. सो now we have to focus on rule number 2, as rule number 1 was really simple. So rule number 2, if there exists s, sh, ch, x and z in the end, es gets to be used. अब कुछ words होते हैं जिसमें already at the end s होता है. ओके अब जैसे मोबाइल था तो उसके एंड पे हमने एस ऐड कर दिया, सो इट्स मोबाइल्स. व्हेन वी हैव अ वर्ड काइंड बस, सो उसके साथ हम बी यू डबल एस तो नहीं कर देंगे ना, सो उसके साथ वी यूज ई एस, सो बसेस. हम ई एस ऐड कर देते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ. जहाँ पे डिश है, सो इसके साथ भी हम डिशेस कर देंगे. ओके DISHS नहीं कर देंगे, डिशेस हो जाएगा, सो ES ऐड होगा. ब्रांचेस हो जाएगा ब्रांच का. फॉक्सेस हो जाएगा फॉक्स का. फीजीज हो जाएगा फिज का. सो हमने ES ऐड करना जब हमें S, SH, CH, X and Z एंड पर मिलता है. Further we have, while pronunciation of CH is like K, just S is added at the end. जब जैसे मोनार्क है, इसको हम मोनार्च नहीं बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन में हमेशा मोनार्क आता है.
ओके जब हम मोनार्क बोल रहे हैं सो उन्होंने बोला है कि जब आपके साथ एंड पे प्रोनाउंसिएशन में सी एच की जगह के आ रहा है, जब हम उस चीज़ को बोल रहे हैं सो हम एस ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब सी एच एस एच रहता है तो उसके साथ हम ई एस ऐड करते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उस चीज़ की, अगर सी एच के की साउंड दे रहा है सो हमेशा एस ऐड होगा। जैसे मोनार्क्स, पैट्रियार्क्स, मैट्रियार्क्स, स्टमक्स, हायरार्क। सो देखो जब हम इनको बोल रहे हैं स्टमक, इट्स के, इट्स गिविंग अ साउंड ऑफ के एट द एंड ऑफ स्टमक। ओके जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे सो एस ऐड होगा, दैट इज स्टमक्स। सो पार्ट 1, व्हेन देयर इज अ वाई इन द एंड, जब वाई एंड पे हो तो हम जो आई ई एस ऐड कर देते हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक आई ई एस, हम आई ऐड कर देंगे उसके बाद ई एस ऐड होगा। ये किस तरीके से, आई जस्ट टेल यू। व्हेन देयर इज अ वाई इन द एंड एंड अ कॉन्सोनेंट बिफोर दैट वाई, आई सब्स्टिट्यूट्स इट एंड एन ई एस देयर आफ्टर। सो बेसिकली जब वाई आपको एंड पे मिलेगा तो आप क्या करोगे, आई सब्स्टिट्यूट कर देगा उस वाई को और फिर हम ई एस ऐड कर देंगे। हॉबीज में आई सब्स्टिट्यूट कर देगा वाई को, फिर हम ई एस ऐड कर देंगे। आर्मी में आई सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा आई को, सो इट विल बिकम आर्मीज। स्टोरी का स्टोरीज, हॉबी का हॉबीज, आर्मी का आर्मीज, फ्लाइज कन्वर्टेड इनटू फ्लाइज, babies converted into babies. So now going to the part 2, but if there's a vowel ahead of that, अगर y के पहले कोई vowel आ रहा है, ओके ये आपको फोकस करना है कि अगर y के पहले वॉवल आ रहा है, आप देखो पिछली एग्जांपल्स, इसमें y के पहले कोई भी वॉवल नहीं आ रहा है, y के पहले r आ रहा है, b आ रहा है, m आ रहा है, l आ रहा है, b आ रहा है, बट ये वॉवल्स नहीं है, वॉवल्स आर a e i o u, ओके इट्स a e i o u। सो जब y के पहले वॉवल आएगा सो हम y को वहीं रहने देंगे, ना ही ई एस ऐड होगा, डायरेक्टली सिर्फ एस ऐड करना और कुछ भी नहीं। इट्स रियली सिंपल। जब y के पहले वॉवल गिवन होगा तो हमने एस ऐड करना है, कोई चेंज नहीं करना है, नो नीड टू चेंज इट। सो डोंकी का डोंकीज, टॉय का टॉयज, डे का डेज। जॉय में y से पहले ओ वॉवल है, जॉयस। प्ले में y से पहले ए है, सो दैट इज अ वॉवल, सो प्लेस। सो रूल नंबर 4, V replaces F or FE and then adds an ES to finish it. Thief है, अब अगर F है या फिर FE है at the end of the word, so हम उसको जब convert करेंगे that will become ES, like उसमें हम ES add कर देंगे, so that will become thief का thieves, wife का wives, not wives, it's wives, okay? हमने V add कर देना है F और FE की जगह, and ES तो हम normally add जैसे करते हैं उसी तरह करना ही है। नाइफ का नाइव्स, वॉल्व का वॉल्व्स, लीफ का लीव्स। सो we have a part 1, like es to be added if the noun is finished by o and a consonant places ahead. जब hero है so noun is finished by o, so उसको जब हम convert करेंगे तो वो heroes बन जाएगा, उसमें हम es ऐड कर देंगे हीरो के आगे। मैंगो में मैंगोज के आगे ई एस ऐड हो जाएगा, जीरो का जीरोस, पोटैटो का पोटैटोस, इको का इकोस। सो बट व्हेन देयर इज अ वॉवल बिफोर दैट ओ, ओनली एस इज इनफ। अगर उससे पहले कोई ओ से पहले वॉवल है, अब आप देखो इस एग्जाम्पल में पार्ट 1 में ओ से पहले कोई भी वॉवल नहीं आ रहा, अगर इसी ओ के पहले वॉवल आ जाएगा तो हम उसमें एस ऐड करेंगे, दैट विल बी इनफ। लाइक कुकूस है तो कुकूस लाइक नॉर्मली एस, लेकिन जब पहले वॉवल नहीं था तो हमने ई एस ऐड किया था, अब इसमें वॉवल है उससे पहले तो हम एस ऐड कर देंगे, दैट विल बी इनफ। बैम्बूज, कुकोस, स्टूडियोज, पोर्टफोलियोज, कैमियोज, ओके। सो एक्सेप्शंस भी होती हैं कुछ, दो देयर्स एन ओ एंड अ कांस्टेंट अहेड ऑफ इट। सम नाउन्स यूज ओनली एस, जैसे फोटोज वर्ड है, इसमें ओ है एट द एंड और कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कोई वॉवल नहीं है। सो सम कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें हम ई एस नहीं ऐड करते, सिर्फ एस ऐड करते हैं ऐसे केसेस में। सो इट विल बिकम फोटोज। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ये लर्न किया था कि जब
लाइक इसमें हमने यहाँ पे लर्न किया था कि ओ अगर एंड पे आएगा और कॉन्सोनेंट उससे पहले आएगा, वॉवल वर्ड नहीं आएगा, तो उसमें हम ई एस ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि जब ओ है, कॉन्सोनेंट भी है उससे पहले, सो हम उसमें भी एस ऐड कर रहे हैं, एज सेम एज व्हेन उसके आगे वॉवल है। उसी तरीके से सेम एज व्हेन इट्स वॉवल लाइक फ्रंट ऑफ दैट लास्ट ओ, फिर भी हम एस ऐड कर रहे हैं। सो फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोस, रेडियो का रेडियोस, एंड कैंटो का कैंटोस, मेमो का मेमोस। सो फॉर सम एस एंड ई एस बोथ आर करेक्ट। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए ये एक्सेप्शन 2 है। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने ये कर लिया अभी, और एक्सेप्शन 2 है कि कुछ होते हैं जिसमें एस और ई एस दोनों चलते हैं। जैसे मॉस्किटो का हम मॉस्किटोस भी कर देते हैं, मॉस्किटोस ई एस भी कर देते हैं। सेम एज कमांडो, पोर्टिको, कैलिको एंड मोमेंटो, उन सब में हम एस और ई एस दोनों यूज कर लेते हैं। सो दीज आर second exception for O case. And rule number 5, some require changing the middle vowel of the word to make it plural. कुछ जो words होते हैं वो क्या require करते हैं कि जो middle vowel है उसको change कर देना plural बनाने के लिए। जैसे men को change करने के लिए जो उसका middle vowel है जो कि है A, उसको हमने E कर दिया, ओके, प्लूरल बनाने के लिए। some require changing the middle vowel of the word to make it plural. women में ई कर दिया एक ही जगह, इट्स अ मिडिल वॉवल। फुट में हमने फीट कर दिया, ओ से ई कर दिया। मिडिल वॉवल माउस में क्या होता है, ओ, सो हमने आई ऐड कर दिया, माइस कर दिया। तुथ में ओ वॉवल है, हमने तीत कर दिया। सो अब देखो इसमें हम वॉवल चेंज कर रहे हैं टू मेक इट प्लूरल। रूल नंबर 6, सम रिक्वायर ई एन, आर ई एन एंड एन ई टू ऐड एट लास्ट। कुछ रिक्वायर करते हैं, देख जैसे ऑक्स है, ऑक्सन हो जाएगा इसका, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, हम इसमें ई एन, आर ई एन, एन ई ऐड कर देंगे। जैसे ब्रदर में ब्रदरियन, ब्रदर्स आर ऑल्सो करेक्ट, बट इसमें हम बेसिकली ये भी यूज कर लेते हैं। काउ में हम काइन यूज करते हैं, काउज इज ऑल्सो करेक्ट। सिस्टर में हम सिस्टरिंग यूज करते हैं, लेकिन हम सिस्टर्स भी ऑल्सो इज ऑल्सो करेक्ट। Part 1. If man means human being in a compound noun, a noun that contains two or more words that jointly make a single noun, man replaces that man. अब जैसे fisherman है तो हम उसमें fishermen कर देंगे। जिस तरह हमने man का देखा था, उसको ए रिप्लेस करके हम ई ऐड कर देते हैं, वॉवल चेंज करके हम ई कुछ भी डिफरेंट वॉवल ऐड कर देते हैं। वर्कमैन में वर्कमेन, एंड बोट मैन में बोट मेन, मैन ऑफ वॉर में मेन ऑफ वॉर, सेल्समैन मैन में सेल्समैन। So इसमें पार्ट 2 है इसका, बट when man is just a part of a word or it refers to any ethnic group, race or civilian, जब वो man सिर्फ वर्ड का पार्ट है, वो किसी ग्रुप को रेफर कर रहा है, जैसे मुसलमान, सो मुसलमान्स आ जाएगा, ब्राह्मण्स, जर्मन्स, नॉर्मन्स, ठीक है, किसी ग्रुप के बारे में अगर वो रेफर कर रहे हैं। रूल नंबर 7 में एस टू बी एडेड वेयर देयर इज अ फुल इन द एंड, लाइक फुल जब एंड पे आएगा तो हम उसको एस ऐड करेंगे। जैसे हैंडफुल्स, माउथफुल्स, स्पूनफुल्स, आर्मफुल्स, कपफुल्स, जब एट द एंड फुल होगा तो हम एस ऐड कर देते हैं। And part 1, if compound noun contains several words, S comes to join with the main part of that noun. अगर compound noun में काफी सारे words, जैसे brother in law, 3 words हैं। कुछ कंपाउंड नाउन होता है जिसमें 3-4 वर्ड इकट्ठे होते हैं, जैसे इसमें ब्रदर भी है, इन भी है, लॉ भी है, पासर्स बाय, स्टेप ब्रदर, कमांडर इन चीफ। तो हम नॉर्मली ऐसे ऐड कर देंगे, ब्रदर्स इन लॉ, पासर्स बाय, स्टेप ब्रदर्स, कमांडर्स इन चीफ। इसमें हमने जो मेन पार्ट है ना नाउन का, उसके साथ ऐसे ऐड करना है। जैसे मेड सर्वेंट में सर्वेंट इज द मेन पार्ट, सो मेड सर्वेंट्स ऐसे ऐड कर देंगे हम नॉर्मली। In part 2, in some cases S comes in every part to make it so. इसमें क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें S हर एक पार्ट में आता है, जैसे लॉर्ड जस्टिस है, उसमें लॉर्ड्स जस्टिस, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स। तो दोनों में हम चेंजेस कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ एक में कर रहे हैं, लाइक मेन पार्ट ऑफ द नाउन, जैसे ब्रदर है, पासर्स है, और इसमें हम सिर्फ दोनों पार्टों में, हम दोनों पार्ट्स जो हैं उसमें हम S ऐड कर रहे हैं। Rule number 8, besides adding S only in the end gets it done for few. जैसे बुक शेल्फ्स है, उसको हम बुक शेल्व्स कर रहे हैं, बुक केस है तो बुक केसेस हो रहा है, मेजर जर्नल है, मेजर जर्नल्स हो रहा है, पोएट लॉरेट है, पोएट लॉरेट्स हो रहा है, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। जो उसका एंड पार्ट है उसके साथ एस ऐड करना है, बीच में नहीं, जो उसका एंड पार्ट रहता है उसके साथ एस ऐड करना है काफी। सो रूल नंबर 9,
Some singular nouns have no plural form, only used in singular. जैसे फर्नीचर है, हम फर्नीचर्स यूज करते हैं, सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में भी इसकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है. सीनरी का सीनरीज नहीं हो जाएगा, सीनरी रहेगा. इशू का इशू रहता है, ब्रेड का ब्रेड रहता है, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर रहता है. रूल नंबर 9, एडवर्सली सम आर ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल फॉर्म. जो सिजर्स है, मम्प्स है, ये ऑलरेडी प्लूरल में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल है, हम कभी स्पेक्टिकल नहीं बोलते, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं. एसेट नहीं बोलते, एसेट्स बोलते हैं. ट्राउजर नहीं बोलते, ट्राउजर्स बोलते हैं. सिजर नहीं बोलते, सिजर्स बोलते हैं, जो सही उसकी वो होती है प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन. दो सम नाउन्स सीम लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल. कुछ नाउन्स लगते हैं कि वो सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल है. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बहुत लोग आते हैं तो उसको हम सिंगुलर नहीं मानते हैं, उसको हम प्लूरल मानते हैं. पीपल में बहुत लोग आते हैं, उसको हम सीधा प्लूरल मानते हैं. पीपल्स नहीं हो जाएगा इसका, इट्स ऑलरेडी प्लूरल. पिजेंट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैटल का हम कैटल्स नहीं करते हैं कभी भी. कैटल का मतलब ही है, हम उसको प्लूरल ही मानते हैं एज सच, सो उसको हम स्पेशली चेंज नहीं करते हैं. ओके. फर्दर, मैनकाइंड, मैनकाइंड हम ऑलरेडी सारे मैन को, सारे जो मैनकाइंड है, लिविंग लोग हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, सो इट्स ऑलरेडी प्लूरल. रूल नंबर 11, सिमिलरली सम नाउन्स सीम लाइक प्लूरल दो दे आर सिंगुलर. कुछ नाउन्स प्लूरल की तरह लगते हैं जबकि वो सिंगुलर है. फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्यूज, वेजेस, ये प्लूरल की तरह लग रहे हैं लेकिन ये है क्या, सिंगुलर. ओके. इसको हम प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं, ये फिजिक्स का फिजिक्स ही रहता है, फिजिक्स नहीं बन जाता. सो इट्स फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्यूज, वेजेस, ये कुछ इसी तरह ही रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं. रूल नंबर 12, some have the same singular and plural form. Dare, sheep, species, corpse, cannon. ये singular और plural इन सब की सेम रहती है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं. And in case of letters, numbers and other symbols, it takes an apostrophe and s. Apostrophe and s to change it. Sam, write your G's and Y's clearly. John, add 2 5s and 3 8s. तो इसमें हम apostrophe s plus s यूज कर रहे हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, नंबर्स और सिंबल्स के लिए स्पेसिफिकली. And there is rule number 13, there is no specific rule for changing the number of pronouns. It's all about memorizing. सिंगुलर में हम आई यूज कर रहे हैं तो प्लूरल में वो वी हो रहा है. सिंगुलर में माई यूज कर रहे हैं तो वो आर हो रहा है, माइन का आर्स हो रहा है, मी का अस हो रहा है, यू का यू ही रहता है. ही शी का हम दे कर देते हैं, हिम हर का देम, योर का योर ही रहता है, दस का दीज हो जाता है, दैट का दोस, एंड इट का दे, हिज हर का देयर रह जाता है. ओके. सो हम इसमें बेसिकली सिर्फ यही करते हैं कि ये स्पेसिफिकली होते हैं प्रोनाउंस जिनको हम इस तरह यूज करते हैं. जो आप देख सकते हैं यू एंड योर रिमेन सेम, बाकी सब चेंज होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द नाउन्स लेक्चर.